Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Excuse me. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Lord Jesus, we glorify you. Lord Jesus, we glorify you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल सुकी ओ जेड़ी तू देना पर मैं ना भुल्लिया तेरा नाम तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान. Hallelujah. Lord, we bless your name this evening. We glorify you. Thank you, Jesus. आप सबको जय मसीह की. Brother Jacob Khokar ji, जय मसीह की. Brother, the Lord bless you. And the Lord bless your family in Italy. The Lord keep you and may the Lord make His favor fall upon your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Lord, I bless Brother Sahil from Pakistan. Let your hand be upon him, Lord, upon his household. Bless Edwin Gill, your servant. Let your hand be upon him, Lord. I pray for Sabi Sujit. Let your hand be upon his life, Lord Jesus. Lord, I bless Naina Dhillon from Delhi. Let your hand be upon her. Emmanuel Sohota and his household. Let your blessing be upon his children, upon his wife, Lord. Bless Karamjit Kaur. Let your hand be upon her. Daisy V.S., Lord, I bring at the foot of the cross Bahadur Singh Akash. May your hand bless Bahadur Singh Akash. Lord, I pray for Reena Khan, and I pray for Raman Khan, and I pray for their daughters and Reena Khan's mother-in-law. Cover them all under the blood. Lord, bless Suresh Kumar from England. Bless Meena Kumari. Bless their children, Lord. Let your hand be upon this precious family. Bless them, Lord, I pray. Lord, I pray for Anita Rani. Bless her. Lord, draw her closer to you. And bless Vipin Sharma from Mumbai. Let your hand be upon his life, Lord. I pray for Tanuja Seth. Bless her, Lord Jesus. And I pray for her husband. Pray for their business. I pray for Santosh Khanna, their mother. I speak your hand of blessing, Lord, and anointing and favor. Bless Amarjit Kaur and her daughter and daughter's daughters. Lord, I bless Manisha Singhi. Cover her under your blood. May her husband come to know you, Lord Jesus. Lord, let your hand be upon your servant, Lalit Mehra. Over Lalit Mehra's wife, over Lalit Mehra's daughter and son,
over Lalit Mehra's in-laws and his father and mother and his relatives up the hills, in the hills, in the very lap of Himalayas. Lord, I pray you bless Lalit. Bless his business, prosper him, Lord. Reward him for his generosity and kindness towards your people, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे जलाली लहू की जय, तेरा धन्यवाद हो. Lord, we bless you. Lord, we praise you. हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे. एक प्रभु के दास हैं, बहुत प्यारे प्रभु के बंदे हैं हिमाचल में, और उनका एक लॉस हो गया. उन्होंने कुछ पैसा कहीं डिपॉजिट किया था जो उन्हें मिल नहीं पा रहा, और उनकी बेटी की शादी है नेक्स्ट मंथ. आज मेरे पास आए थे तो I was able to help him a little bit, but we all have to help him. खुदाबंद जैसे आपके दिल में डाले. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में उनकी बेटी की शादी है, और खुदावंद हमें रिसोर्सेज दे ताकि हम उनकी बेटी की शादी में उनकी सहायता कर सकें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. Lord, I pray for Ajay Suri. I pray for his mother. Surinder Kaur, Lord, I cover under your blood. Meenu Sood, I cover under your blood. Hallelujah. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा, तेरे नाम की महिमा करते हैं. तो हालेलुया. सबको जय मसीह की. मैं 4 सेशन हम मिस्ट्री बेबीलोन पे कर चुके हैं, और उसकी पूरी डिटेल में जा रहे हैं हम. व्हाट इज मिस्ट्री बेबीलोन? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बेबीलोन इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, एंड आई एम टैकलिंग विद द मिस्ट्री बेबीलोन, व्हिच इज वेरी वेरी डीप, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट सब्जेक्ट. हालेलुया. तो मैं आपको बता रहा था कि सदर्न किंगडम जो, जिसे हम यहूदा कहते हैं, सदर्न किंगडम का स्पिरिचुअल पतन हुआ, लेकिन नॉर्दर्न किंगडम का स्पिरिचुअल पतन बहुत जल्दी हुआ. जो नॉर्दर्न किंगडम थी, जिसे हम इज़राइल कहते हैं, उसमें जितने राजा हुए वो सभी दुष्ट थे, सभी ने यहोवा को क्रोध दिलाया. लेकिन सदर्न किंगडम में कुछ राजा बहुत धर्मी थे, अच्छे राजा थे. और सदर्न किंगडम, जिसे हम यहूदा कहते हैं, वहां पे यरूशलेम में यहोवा का टेम्पल था, जो कि इस्राएल की लाइफ लाइन थी. लावी, परमेश्वर के याजक, वहाँ पे थे सदर्न किंगडम में. टेम्पल सदर्न किंगडम में था. परमेश्वर की हैकल में कुर्बानियाँ, भेंटें, नजराने सदर्न किंगडम में चढ़ाए जाते थे. पर्व मनाने के लिए लोग सदर्न किंगडम में इकट्ठा होते थे. इसराइली लोग साउथ में, सदर्न किंगडम में, यहूदा में आत्मिक जड़ों के संग चिपके रहे काफ़ी लंबे समय तक. इसलिए यहूदा का विनाश हुआ तो जरूर. और यहूदा के विनाश की वजह क्या थी? सुने ध्यान से. यहूदा के विनाश की वजह थी झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट, और दुष्ट राजा. हालेलुया. फॉल्स प्रॉफिट एंड इवल लीडर्स. इसकी वजह से सदर्न किंगडम का विनाश हुआ. 586 BC. नॉर्दर्न किंगडम का 722 BC में हो गया, और इनका 586, लगभग 136 साल के बाद यहूदा का भी विनाश हुआ, क्योंकि यहूदा ने यहोवा को त्यागा. यहोवा की वाचा को इन्होंने रद्द कर दिया. यहोवा की विधियों को, यहोवा के न्यायों को, यहोवा के मार्गों को त्यागा, और अन्य जाति जैसे छिनाले के काम करने लगे. और सदर्न किंगडम के लोग झूठे नबियों के पीछे गए, और यहोवा ने अपने क्रोध में इन्हें दुष्ट राजा दे दिए ताकि वो इनका पतन करे. और जो यहोवा का पैटर्न है कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी विधियों की पालना नहीं करोगे, मेरे हुक्मों को चौकसी मंचित लगा के नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर तलवार भेजूंगा, तो मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा, तो मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, अगर तुम फिर भी नहीं बाज आए तो मैं बीस्ट भेजूंगा.
जंतु को भेजूंगा। हालेलुया। और प्रभु यहोवा क्या कहता है कि अगर तुम वापस लौटे तो ठीक, अगर तुम अपनी हठधर्मी में लगे रहे तो मैं तुम्हारी सजा को 7 साल और 7 गुना और बढ़ाऊंगा। 26 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़ लीजिएगा। 4 बार प्रभु कहता है मैं 7 गुना करूंगा, 7 गुना, 7 गुना, 7 गुना। और इज़राइल को यह सजा मिली जिसे हम डैनियल 70 वीक्स का भेद कहते हैं, दानियल के 70 हफ्तों की प्रोफेसी, उसको हम पूरी तरह अनफोल्ड करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप कुछ वचन पढ़ें जल्दी से। हालेलुया। तो ये झूठे नबी जो थे, ये इज़राइल के आखिरी राजा, इज़राइल का आखिरी राजा जो था उसको यहोयाकीम उसका नाम था। यहोयाकीम को झूठी नबूवतें करते थे। यहोवा हमारे संग है, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा। जीवन के अंदर प्रभु की पवित्रता ही नहीं है, जीवन में प्रभु की ज्योति नहीं है, जीवन में यीशु मसीह का खून काम नहीं कर रहा, जीवन में ना तो परमेश्वर की विधियां हैं, ना हुक्म है, ना नियम है, फिर भी गीत गाते हैं जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, चुपचाप खड़े रहो। अरे भाई, ये जो वायदे हैं ये कंडीशनल हैं, ये वायदे शर्तों के साथ हैं। यदि तुम प्रभु के संग चलोगे तो प्रभु यहोवा तुम्हारे संग चलेगा। तो झूठे नबियों ने भरमाया। मैंने आपको बताया 7 बार नबूकदनेस्सर आया, 7 बार 7 सीजेस ऑफ जेरूसलम, 7 बार जेरूसलम को उसने घेरा डाला। पहली बार आया तो उसने क्या किया, यहोयाकीम जो राजा था, यहोयाकीम ने उसके संग ट्रीटी की, संधि की, और उसने उनको, राजा ने वसाल किंग, वासल किंग, VASSALKING किंग, सुजरेन वसाल कहते हैं। सुजरेन वसाल एक वाचा होती है, कवनेंट, SUZZERAN सुजरेन वसाल प्राचीन समयों में एक वाचा होती थी, जब एक बड़ा राजा छोटे छोटे राजों के ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख देता था और उन्हें बख्श देता था, और उन्हें कहता था तुम किंगडम चलाओ लेकिन तुम मेरे अधीन हो, तुम मुझे टैक्सेस दोगे और ट्रिब्यूट दोगे। हालेलुया। लेकिन क्या करता है वो राजा नबूकदनेस्सर, वो रॉयल लिनेज में से, जो यहोयाकीम राजा है उसके खानदान में से जवानों को ले जाता है, जिनमें से डैनियल है, हनन्याह है, मिशेल है, अज़राया है, जिनके नाम वो राजा शद्रक मेशक ओबेदनीगो कर देता है। ये रॉयल लाइन के जवान लड़के हैं जिनको ले जाता है और अपने महल में इन्हें क्या करता है, अपने महल में इन्हें ऊंची पदवियां देता है और इनकी आइडेंटिटी बदलना चाहता है। वो चाहता है कि ये राजा के टेबल से खाना खाएं, भोग विलास करें, और जो उनका कल्चर है बेबीलोन का, मदिरा का कल्चर है, मांस, मदिरा, कबाब और शबाब, राजसी खाने और औरतें और हर तरह के गंदे काम, उसमें ये लोग भी शामिल हो जाएं। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक, ओबेदनीगो, ये जो जवान लोग जिनके अंदर यहोवा का कलाम गहराई से वास करता है, इन्होंने ये काम करने से राजा को मना कर दिया। बहुत सारे लोग आज कहते हैं जी हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो लोग पॉलिटिक्स में गए, शद्रक, मेशक, ओबेदनीगो, जिनको नाम दिया गया, अज़राया, हनायल और मिकेल और डैनियल, ये लोग अपनी चॉइस से नहीं गए बेबीलोन की पॉलिटिक्स में, इनको गुलाम बना के लेके गया राजा, और उस राजा ने इनको अपने महल में अवसर दिया कि ये राजा जैसे उनकी किंगडम के अंदर जो प्रिंस रहते हैं, ऊंचे पद के लोग रहते हैं, जो मदिरा पीते हैं, कबाब खाते हैं, शबाब का, औरतें हैं वहाँ पे, हर तरह का काम है, वो सारे गंदे काम करते हैं, शाही जो लोग करते हैं, ये भी करें। लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किए, इन्होंने राजा का खाना ही नहीं खाया। इनको पता है कि राजा का वो जो खाना है वो देवी देवताओं को चढ़ाया गया खाना है, और वो जो खाना है वो बहुत रिच खाना है, जिसको खा के इनके शरीर के अंदर वासनाएं जगेंगी। इन्होंने कहा हमें साग पात खाने के लिए दे दीजिए।
हालेलुया। ब्रदर ललित मेहरा जी कहेंगे मुझे फिर रिमाइंड करवा रहे हो। इन्होंने साग पात खाया, लेकिन इनके चेहरों पे नूर जो था वो राजा के जो प्रिंसेस थे उनसे ज्यादा था। आप जाइए पॉलिटिक्स में, गए आप लेकिन शद्रक मेशक ओबेदनेगो की तरह अपने आप को रखिए। अजराया, हनानियल और मिखेल और दानियल की तरह रखिए, अछूते, वो गंदगी आपको छूने ना पाए। यीशु मसीह कहता तुम जगत में हो लेकिन जगत के नहीं हो। हालेलुया। तो ये लोग चमकते हैं यहोवा के तेज से बेबीलोन में। बेबीलोन के गंदे कल्चर में मिक्स नहीं हो गए ये। तो आप सुने कि 3 सीज आती हैं। जो ये राजा है यहोयाकीम, उसको झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट, प्रोफेसी करके कहते हैं तुम्हें टैक्स नहीं देना है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, हम यहोवा की संतान हैं, यहोवा हमारे साथ है। तो तीनों बार ये राजा क्या करता है? बलवा करता है। सेकंड टाइम जब फिर ये बलवा करता है, नबूकदनेस्सर आता है और इसे रिप्लेस कर देता है यहोयाकीम को उसके अंकल जिदकाया। जिदकाया उसका अंकल है। दूसरा राजा 24:1 मैंने आपके लिए पढ़ा था शायद, दूसरा राजा 24:1। आप बीच में प्लीज कोई टाइप करते जाइए ताकि लोगों को वचन का रेफरेंस मिल सके। दूसरा राजा 24:1 सुनिए, मेरे पास बाइबल बहुत बारीक बनने वाली है एंड इट्स टेकिंग टू मच टाइम। दूसरा राजा 24:1 सुने। In his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up. This is the second time he is coming. And Jehoiakim became his servant for 3 years. This is first time, of course. Then he turned and rebelled against him, and the Lord sent again his band. ये second time आ रहा है. Of the Chaldeans and the band of the Syrians and the band of the Moabite and the band of the Ammonite, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord that he spake through his servants, the prophet. Surely this came upon Judah at the command of the Lord to remove them out of his sight for the sins of Manasseh according to what he had done. Also the innocent blood that he had shed. मैंने आपको बताया बच्चों को कैसे वो अर्पण करते थे यहोवा के आगे. For he filled Jerusalem with innocent blood and the Lord would not pardon. उन्होंने अपने बच्चों को, that is called passing your children through the fire, giving your seed to Moloch. Giving your seed to Moloch. That is, today that is called Planned Parenthood in America. It is called Planned Parenthood. You can kill your children. You can abort your children, even your full-term babies. यही है वो sin जिसके लिए खुदावंद अमेरिका को गिल्टी, अमेरिका खुदावंद के आगे गिल्टी है। इसलिए ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहोवा उनको दुष्ट लोगों के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं। ये मिस्टर बाइडन एंड हैरिस ग्रुप जो है, ये वो लोग हैं नबूकदनेस्सर जो अमेरिका को सजा देंगे, लेकिन यहोवा फिर दया कर रहा है, ट्रंप को ला रहा है। ये अपने बच्चों को, दे वर बुचरिंग देयर चिल्ड्रन। हालेलुया। और क्या लिखा है? तो दूसरी बार नबूकदनेस्सर ने आके क्या किया? इसको हटा दिया यहोयाकीम को। उसने यहोयाकीम को हटाया और जिदकिया को, अगर आप पढ़ेंगे आगे, यहां पे लिखा है, आगे लिखा है, नाउ रेस्ट ऑफ द डीड ऑफ यहोयाकीम एंड ऑल ही डिड आर दे नॉट रिटन इन द बुक ऑफ द क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग ऑफ जूडा? सो यहोयाकीम स्लेप्ट विद हिज फादर्स एंड यहोयाकीम्स सन रेन इन हिज प्लेस। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, यहोयाचिन आ गया यहोयाकीम की जगह। तो इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, इसका आप पढ़िएगा 10 वचन से, 24:10। एट दैट टाइम द सर्वेंट्स ऑफ Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar of Babylon came to the city while his servants were besieging it. And Jehoiachin, Jehoiakim ka beta, the king of Judah, gave himself up to the king of Babylon, himself and his mother, servants, officials, his palace official. And the king of Babylon took him prisoner in the 8th year of his reign, and carried off the treasure of the house of the Lord and the treasure of the king's house,
cut in pieces the vessel of the gold of the temple of the Lord, which Solomon king of Israel had made, as the Lord foretold. He carried away all Jerusalem and all the official and the mighty men of valor, 10,000 captive, and the craftsman and the smith, none remained except the poorest people of the land. He carried away Jehoiachin to Babylon, and king's mother and king's wives, his official and chief men, and the land he took into captivity from Jerusalem to Babylon. And the king of Babylon brought captive to Babylon men of valor, 7,000, craftsmen, metal worker, 1,000, all of them strong and fit to war. And the king of Babylon made Mattaniah Jehoiakin's uncle in his place and changed his name to Zedekiah. राजा ने क्या किया? झूठे नबी नबूवत कर रहे थे, यहोवा लड़ाई करेगा तुम्हारे लिए, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, मुक्ति के निजात के काम देखो, यहोवा हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉल्स प्रॉफिट झूठी होप दे रहे थे इजराइल को। जिर्मिया नबी को तो जेल में डाल देते थे क्योंकि वो सच बोलता था। वो राजा से कह रहा था अपने आप को उसके हवाले कर दो, ये यहोवा की मर्जी है कि तुम लोग बेबीलोन में जाओ, 70 साल तक वहां रहो, ये यहोवा की सजा है। 70 साल के बाद तुम जब प्रभु की ओर मुड़ोगे वो तुम्हें लौटा ले आएगा। जिर्मिया सच्ची नबूवत करता था, झूठे नबी झूठी नबूवतें करते थे और राजा को भड़काते थे, और राजा ने वही काम किया। ये 3 बार कैप्टिव बना के लेके गया सब जवानों को जो बढ़िया बढ़िया काम जानते थे, जिनके पास हुनर था, स्किल था, क्राफ्ट था, सबको ले गया। हैकल को लूट के ले गया, हैकल के पवित्र बर्तन सब कुछ ले गया। उनके मन में एक टबू था। टबू जानते हैं? टबू का मतलब एक मिथ्या भावना थी कि ये तो हैकल है यहोवा की, इसके अंदर थोड़ा दुष्ट आदमी घुस सकता है। जैसे अभी भी कई लोग सोचते हैं, लो जी एक पवित्र आत्मा पाए इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है। ये रिलीजियस आइडियोलॉजी को शेक करो, जरा कलाम की रियलिटी को देखो क्या लिखा है। ये झूठे लोग थे जिनके जीवन में पाप और दुराचार था, जिनके दिल में यहोवा की आज्ञाएं नहीं थी, जो यहोवा के पथ पे चलते नहीं थे। ये तंग फाटक से जाने वाले नहीं थे, सकरे मार्ग पे चलने वाले नहीं थे, ये क्रूस उठाने वाले नहीं थे, अपने आप का इनकार करने वाले नहीं थे, पवित्र धर्मी जीवन जीने वाले नहीं थे। लेकिन ये सोचते थे कि यहोवा इनके लिए लड़ाई लड़ेगा। हैकल के अंदर अन्य जाति के लोग कैसे आ सकते हैं, यहां पे तो सेनाओं का यहोवा विराजमान है। वो आया, हैकल को तहस नहस कर गया, सब कुछ लूट के ले गया, पवित्र बर्तन भी, इज़राइल को गुलाम बना गया। और मत्तनाया जो उसका चाचा था उसको गद्दी पे बिठाया और उसे जिदकिया का नाम दिया। उसने सारे इज़राइल को गुलाम कर लिया। और पीछे किनको छोड़ के गया? जो बिल्कुल निकम्मे लोग थे, जिन्हें कुछ काम करना नहीं आता था। पढ़िए यहां पे क्या लिखा है, इसका 14 वचन पढ़िए, 24 का 14, दूसरा राजा 24 का 14। ही कैरिड अवे ऑल जेरूसलम एंड ऑल द स्मिथ, जितने भी काम करने वाले लोग थे, लोहार थे, सुनार थे, तांबे पीतल का काम कर, नन रिमेन्ड एक्सेप्ट द पूरेस्ट पीपल ऑफ द लैंड। गरीब गुरबों को छोड़ गया, उनको नहीं लेके गया, बाकी सबको ले गया। एंड कैरिड अवे Jehoiachin to Babylon, the king's mother, the king's wife, his official, and all his chief men of the land he took into captivity from Jerusalem to Babylon. And the king of Babylon brought captive to Babylon all men of valor, 7,000 craftsmen, and the metal worker 1,000 strong and fit to war. Hallelujah. खत्म कर दिया उसने यरूशलेम को। और जिर्मिया पीछे रह के विलाप करता है कि यहोवा यरूशलेम के संग ऐसा क्यों हुआ। इज़िकियल भी चला गया, वो भी जवान है, और वो विलाप करता है कबार नदी के पास जाके, और प्रभु से प्रश्न करता है कि प्रभु क्यों हुआ इज़राइल के संग ऐसा। प्रभु के आगे रोता है, वो धर्मी व्यक्ति है। तो प्रभु का आत्मा, इज़िकियल नबी की पुस्तक पहले 10 अध्याय पढ़िएगा, 12 अध्याय बल्कि, यहोवा का आत्मा इज़िकियल को बालों से पकड़ के उठा लेता है, हवा में उड़ा के दोबारा यरूशलेम ले आता है। 750 मील की जर्नी है, पवित्र आत्मा उड़ा के ले आता है इज़िकियल को, और यरूशलेम की हैकल दिखाता है उसको। पहले बाहर से दिखाता है सुराख के जरिए हैकल के अंदर क्या हो रहा है, फिर हैकल के अंदर लेके जाता है। हैकल की दीवारों पे गंदी तस्वीरें हैं, हैकल के अंदर हर तरह के गंदे घिनौने काम किए जा रहे हैं।
यहोवा की हैकल के अंदर पुजारी लोग, याजक लोग सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। औरतें तम्मूज के लिए स्यापा कर रही हैं। तम्मूज, निम्रोद और सेमिरामिस, जो आज मैं आपको विषय बता रहा हूं, मिस्ट्री बेबीलोन। मिस्ट्री बेबीलोन क्या है? मिस्ट्री बेबीलोन जड़ है। दुनिया के सब झूठे धर्मों की जड़ बेबीलोन से शुरू हुई। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय से सब पंथ, सब प्रकार की ये बातें जो दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि इस जगत के ईश्वर ने उनकी आंखों के ऊपर अंधेरे की चादर डाल दी है। वो देख नहीं पा रहे परमेश्वर के तेज को, नूर को, परमेश्वर के उज्जवल सुसमाचार को देख नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान ने उनकी अंदरूनी आंखों को ढका हुआ है। बेबीलोन की आत्मा है ये मिस्ट्री बेबीलोन, जिसने लोगों को अंधेरे में रखा है। ये मिस्ट्री बेबीलोन इजरायलियों के अंदर चला गया, जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। वो तम्मूज के लिए रोती हैं, वो सेमिरामिस की पूजा करती हैं, उस देवी की, और पूजा करती हैं निम्रोद की। प्रभु यहोवा कहता है बाल की, ग्रोब की और आकाश के गणों की पूजा करते हैं ये लोग। ये है बेबीलोन जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये चर्च के अंदर है। यही है क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर। ये कड़वा लगता है आपको, सुन नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते आप, या सुनते भी हो तो मनाओगे जरूर गुड फ्राइडे क्रिसमस को, सच को जानने के बाद भी, क्योंकि लोगों की आत्मा में होल, सोल के अंदर होल हो रखे हैं, ढूंढते नहीं है खुदावंद के सच्चे कलाम को। ये वही है जो 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन दोबारा लेके आया है। कॉन्स्टेंटाइन के पीछे जो शैतानी आत्माएं हैं, निस्सियन क्रीड के द्वारा फिर कलीसिया के अंदर इसको लेकर आए हैं। ये वही है। इस पे भी मैं आपको और गहरी शिक्षा दूंगा। हालेलुया। तो सुनिए, हालेलुया। यिर्मयाह वार्निंग देता रहा, ज़िदकिय्याह को बोलता रहा, लेकिन उन्होंने यिर्मयाह की सुनी नहीं। सच्चे नबियों की नहीं सुनता कोई, झूठों के पीछे भागते हैं लोग। हालेलुया। पहली डेसोलेशन आई, पहली सीज, सेकंड डिपोर्टेशन हुई, उसके बाद थर्ड डिपोर्टेशन हुई। ये यरूशलेम की डेसोलेशन है भाई और बहनों, जिसके विषय में यिर्मयाह विलाप करता है यहोवा के आगे। मैं कुछ वचन देना चाहता हूं आपको। दूसरा राजा 24 का 10 से पढ़िए। दूसरा राजा 24 अध्याय 10 से। ये मैंने कुछ पढ़ दिए वचन आपके लिए। यस, आई हैव ऑलरेडी रेड देम। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 क्रॉनिकल्स 36, दूसरा इतिहास उसका 36 और 5 से। दूसरा इतिहास 36 अध्याय, और सुनिए उसके 5 वचन से पढ़ रहा हूं। सुने क्या लिखा है। Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. He did what was evil in the sight of the Lord God. क्या किया इसने? बदकारी की। Against him came up Nebuchadnezzar from Babylon and bound him in chains to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also carried part of the vessel of the house of the Lord to Babylon and put them in the palace of Babylon. And the rest of the acts of Jehoiakim and of the abomination he did. जोआकिम ने बदकारियां की, गंदे घिनौने काम किए यहोवा के विरुद्ध में, वो सब यहोवा की किताब में लिखे हुए हैं। हालेलुया। पढ़ लीजिए 9 और 10 वचन यहोयाकीम के बारे में क्या लिखा है। यिर्मयाह नबी की किताब में से पढ़ता हूँ। यिर्मयाह नबी उसका 37 अध्याय, यिर्मयाह 37 पढ़िए जल्दी से। Jeremiah 37 verse number 1. Zedekiah the son of Josiah, whom Nebuchadnezzar king of Babylon made king in the land of Judah, reigned instead of Coniah the son of Jehoiakim. But neither he nor his servants nor the people of the land listened to the words of the Lord that he spoke through Jeremiah the prophet. पढ़ी सुनिए। यिर्मयाह 37 का 1 पढ़ लें। जो यिर्मयाह खुदा का बंदा बोलता था सच्चा कलाम,
वो नहीं सुना इन लोगों ने। इसका नाम था जकोनाया। यहोवा ने कहा तू कोनाया रह जाएगा। यहोवा उसने हटा लिया उसके नाम के साथ से, याह कोनाया उसका नाम था, क्राउन ऑफ याह, यहोवा का क्राउन। यहोवा ने बोला मैं तेरे नाम के साथ अपना नाम हटा रहा हूं। यू आर कोनाया ओनली, यू आर नॉट जकोनाया। हालेलुया। फॉल्स प्रॉफिट डिसीव करते हैं। झूठे नबियों की भविष्यवाणी सुन के इजराइल का पतन हुआ। सच्चा नबी को तो वो जेल में डालता। सच्चे नबी को आपको मालूम उन्होंने क्या किया? कुएं में फेंका था, जिसके अंदर बहुत से हिब्रू स्कॉलर मानते हैं कि उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा था, टॉयलेट था सूखा हुआ, जिसके अंदर यिर्मयाह को फेंक दिया गया था। यहोवा के दास यिर्मयाह ने यह भविष्यवाणी की थी। पढ़िए अब यिर्मयाह नबी, उसका 27 चैप्टर, जरमाया 27 एंड रीड वर्स नंबर 6। जरमाया 27 वर्स नंबर 6 सुने ध्यान से। यिर्मयाह 27:6। नाउ आई हैव गिवन ऑल दीज लैंड्स इनटू द हैंड ऑफ नबूकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन माय सर्वेंट। हालेलुया। किंग ऑफ बेबीलोन कौन है? यहोवा का नौकर ही है। सारी कौमें यहोवा की नौकर हैं। सुन लो ध्यान से। यहोवा ने खुद अपनी कौम को नबूकदनेस्सर के हाथ में दिया है। आप लोग तो शैतान को डांटते हो ना, तो ये डांटता हूं। अगर यहोवा ने आपको उसके हाथ में सौंपा है ना, तो आपकी धुलाई होगी। जो भूसा है ना आपके अंदर, वो निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु तो कहते हैं मुझ में बने रहो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, और जो फल लाती है उसको पिता काटता छाटता है। लेकिन पिता की कटाई छटाई तो आपको पसंद नहीं है, ना तो आप यीशु मसीह में बने रहना चाहोगे। इसलिए परमेश्वर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो आपको थ्रेशिंग फ्लोर में लाएगा और आपको हवाले करेगा अपने नौकरों के। नौकर है नबूकदनेस्सर, नौकर है शैतान यहोवा का, और फिर वो धुलाई करेगा। बहुत सारे मसीहों की धुलाई करता है शैतान, और वो शैतान को झिड़क रहे होते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि यह परमिशन यहोवा ने दी है। एक बार कोई ऐसी बात मुझे प्रभु कह रहा था, शायद कुछ करने के लिए कह रहा था। मुझे ऐसा लगा प्रभु की आवाज नहीं है। मैं 2 दिन उसको डांटता रहा। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, आई रिब्यूक यू। तो मुझे प्रभु की आवाज आई। प्रभु ने कहा, आई एम यहोवा योर फादर, यू कैन नॉट रिब्यूक मी। मैं यहोवा तेरा बाप हूं, मुझे रिब्यूक नहीं कर सकता तू। हालेलुया। मुझे कोई बता रहा था, किसी भाई को प्रभु ने बोला कि 2 लाख रुपया प्रभु के दास को दे दे। प्रभु ने उसको बोला ड्रीम में। पैसा तो था उसके पास, लेकिन वो लालची था। तो वो प्रार्थना में जब उसे ख्याल आता तो रिब्यूक करता था। मैं इस विचार को रिब्यूक करता हूं। और उसने 20,000 रुपया उनको दे दिया। प्रभु ने बोला 180 जाके और दे। जब ऐसी बातें आती है ना मसीहों के आगे, तो रिब्यूक करने लगते हैं शैतान को। देखिए यहोवा कह रहा है मेरा नौकर है नबूकदनेस्सर, मैंने इजराइल को उसके हाथ में दे दिया है। क्यों देना पड़ा यहोवा को अपनी कौम को इजराइल के दुष्टों के हाथ में? क्योंकि वो यहोवा की बात मानते नहीं है। सुन ले यहां पे क्या कहता 8 वचन। नाउ आई हैव गिवन ऑल दीज लैंड्स इनटू द हैंड ऑफ नबूकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन माय सर्वेंट, एंड आई हैव गिवन हिम ऑल्सो द बीस्ट ऑफ द फील्ड टू सर्व हिम। जानवरों को भी मैंने दे दिया, जानवर उसकी सेवा करेंगे नबूकदनेस्सर की। ऑल द नेशन शैल सर्व हिम, हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन, until the time of own land comes, then many nations and great king shall make him their slave। जब तक प्रभु का समय पूरा नहीं होगा। हालेलुया। इसका 8 वचन पढ़ें। बट इफ एनी नेशन और किंगडम विल नॉट सर्व दिस नबूकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन एंड पुट इट्स नेक अंडर हिज neck under the yoke of king of Babylon, I will punish that nation with the sword, famine, pestilence, declares the Lord। 3 चीजें देख रहे हैं आप। 8 वचन पढ़ें। यिर्मयाह 27:8। कितनी चीजें भेज रहा है परमेश्वर? कहता है मैं सोड भेजूंगा, फैमिन भेजूंगा, पेस्टिलेंस भेजूंगा। 3 बोल रहा है। चौथा जो बीस्ट है वो नबूकदनेस्सर खुद बीस्ट है। ये बीस्ट किंगडम है। नबूकदनेस्सर एक स्टैच्यू देखता है, ये किंगडम है। जितने जानवर बाइबल में दिखाए गए हैं, ये भाई और बहनों वो किंगडम है जो मसीहों को बंदे का पुत्र बनाती हैं।
जिन्होंने इसराइलियों को सीधा किया जब इसराइली यहोवा के मार्गों पे नहीं चले। ये बीस्टली किंगडम है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने यहोवा की सत्ता को ठुकराया। यहोवा इजराइल का राजा है, राज्य करना चाहता था, लेकिन उन्होंने सैमुएल से कहा हमें राजा दे एक। तब यहोवा ने उन्हें शाऊल दे दिया और मोनार्की शुरू हो गई। यहोवा के दिल की इच्छा थी कि वो खुद अपने लोगों पर राज करे। आप यहोवा को नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आप अपना सिस्टम क्रिएट करो जो आप पे राज करे। आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से चलाना चाहते हो। मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा रियल एस्टेट है, मेरी एजुकेशन है, मेरा करियर है। अरे भाई, यहोवा को अपना आधार बना। आपके जीवन की लाइफ लाइन है यहोवा। सब कुछ उसके चरणों में सरेंडर कर। अपना तन मन धन सब कुछ उसके चरणों में सरेंडर कर। उससे कह प्रभु तू मेरे जीवन की जीवन धारा है। यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता तू मेरे जीवन की धारा, तू मेरे जीवन को चला। मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करता हूं। हालेलुया। अब मैं आपको देना चाहता हूं इसका ही यिर्मयाह का 38 चैप्टर निकालें। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 38। यिर्मयाह 38 और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। हालेलुया। यिर्मयाह 38 का 17, यिर्मयाह 38 का 17 सुने। Then Jeremiah said to Zedekiah, Thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, if you will surrender to the officials of the king of Babylon, then your life shall be spared, and this city shall not be burned with fire, and you and your house shall live. But if you do not surrender the official and the kings of Babylon, then this city shall be given into the hands of the Chaldean, and they shall burn it with fire, and you shall not escape. क्यों? क्योंकि यहोवा ने तुम्हें बैबलोन के हाथ में दिया हुआ है। 21 वचन पढ़ें इसी का। But if you refuse to surrender, this is the vision which the Lord has shown me. Behold, all women left in the house of the king of Judah were being led out of the officials of the king of Babylon and were saying, Your trusted friend have deceived you and prevailed against you. Now that your feet are sunk in the mud, they turn away from you. कितनी बड़ी ट्रेजेडी आई। क्यों? क्योंकि ये झूठे नबियों को सुनते थे, झूठे नबियों की आवाज को सुनते थे। इन्होंने अपने जीवन की ओर गौर नहीं किया कि हमारा जीवन तो पाप में है, गुनाह की दलदल में है। इनको पॉजिटिव प्रीचिंग चाहिए थी कि मोटिवेट करो हमें, बढ़िया बढ़िया कलाम दो, ब्रेक थ्रू इज कमिंग, ग्रेट ब्लेसिंग इज कमिंग, 2020 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर ऑफ सुपर ब्लेसिंग, सुपर डुपर ब्लेसिंग, आई एम सुपर ब्लेस्ड, फलाना ढिमका। ऐसे जुमलेबाजियां करते हैं ये लोग। अपना जीवन नहीं देखते कि पाप की दलदल में धंसा हुआ है। God is going to pour out blessing, God is going to do this, God is going to do that. पढ़िए अब एक वचन ध्यान से। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। यिर्मयाह 29 का 10। For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise, and I will bring you back to this place. Hallelujah. देखिए अब आप 11 आयत पढ़ें इसकी, 29 की 11 पढ़िए सभी जितने लोग ऑनलाइन हो। यिर्मयाह 29 की 11 पढ़ें। आपने ये आयत देखी होगी, बड़े बड़े कैलेंडरों पे छपी होती है, कई प्लाक बनाए लोगों ने, उसके ऊपर ये आयत लिखी होती है। ओह क्या आयत है? 11 आयत सुने। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान फॉर वेलफेयर एंड नॉट इवल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। तो लोग इसे एक मोटिवेशनल वर्स लेते हैं। मैं तुम्हें आशा दूंगा, सुनहरा भविष्य दूंगा, मेरे पास तुम्हारी खुशहाली की कामनाएं हैं, मैं तुम्हारे लिए खुशहाली की कामना करता हूं, तुम्हारी बुराई की नहीं करता मैं। इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके लगाया होता है। दीनाकरण जी के कैलेंडर पे लिखी होती हैं ये, लोग मोटिवेट होते हैं। लोगों को पता नहीं है ये आयत आ कहां से रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में यहोवा बोल रहा है।
इसकी 11 आयत ही देंगे, 10 आयत नहीं देंगे। 10 आयत कह रही है, फॉर दस सेज द लॉर्ड व्हेन 70 ईयर्स आर कंप्लीटेड फॉर बेबीलोन आई विल विजिट यू। मैंने 70 साल दिए हैं मेरे नौकर नबूकदनेस्सर को, वो 70 साल तुम्हारा बैंड बजाएगा, 70 साल तुम्हें सीधा करेगा, 70 साल तुम्हारे अंदर से जब भूसा निकल जाएगा तो जो समय मैंने दिया शैतान को वो पूरा हो जाएगा, बेबीलोन का समय ओवर हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा, तुम्हें विजिट करूँगा और तुम्हें छुड़ाऊँगा। अब ये तो नहीं बताएंगे पूरा, वो कह मेरे आई हैव द प्लान्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आई हैव द प्लान्स टू गिव यू फ्यूचर, आई हैव द प्लान्स टू गिव यू ग्लोरियस एंड, आई एम फॉर यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। पूरा कलाम नहीं बताते ये लोग, ना लोग पूरा कलाम समझना चाहते। दुख की बात ये है, इसलिए धोखा खाते हैं। इसलिए जिदकिया ने धोखा खाया। नबी झूठी भविष्यवाणियां करते थे, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, उसके बच्चों को, उसकी रानियों को एम्बैरस करके, शर्मिंदगी की हालत में गुलाम बना के, जंजीरों से बांध के राजा अपने देश में लेके गया। तो जिर्मिया तो कह रहा था कुछ नहीं होगा तुम्हें अगर तुम यहोवा की आज्ञा मानोगे। कोई वो यरूशलेम को जलाएगा नहीं, आग नहीं लगाएगा, हैकल को तोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तुम्हें वो गुलाम बना के बस सिर्फ तुम्हें एग्जाइल में ले जाएगा। लेकिन झूठे नबियों की बातें इन्होंने सुनी, यहोवा के सच्चे खादिम की बातें नहीं सुनी। आप कहां से किससे कलाम सुन रहे हो? आप किससे सीख रहे हो? जो बीच में से तोड़ तोड़ के आपको देता है प्रभु का कलाम, जो अच्छी बातें हैं वो निकाल के काट के दे देता है आपको, और आपको पूरे पर परमेश्वर की पूरी मनसा नहीं सिखाते हैं, परमेश्वर की पूरी योजना नहीं सिखाते हैं। दानियल नबी कह रहा है कि 70 साल के बाद आऊँगा मैं। 70 ईयर्स यहोवा ने मुकर्रर किए हैं सजा के। ये 70 साल कम नहीं हो सकते। इतना है कि 70 अगर मैं तुम सही ढंग से रहोगे, 70 के बाद मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। ये है डैनियल का 70 वीक। अब इसके ऊपर भाई और बहनों 2 घंटे की स्टडी है, और डैनियल के 70 वीक के ऊपर, जो मैं कल सुबह आपके संग करूंगा, अभी रात को नहीं मैं करना चाहता। 2-3 घंटे में ये 70 वीक को हम ख़त्म करेंगे, और फिर हम पूरा ये बेबीलोन, जो मिस्ट्री बेबीलोन है, इसकी पूरी की पूरी पैराडिगम को समझने पाएंगे कि मिस्ट्री बेबीलोन क्या चीज़ है। तो डैनियल मैंने आपको ले आया हूँ जब जिर्मिया नबी कहता है कि यहोवा की ओर से मुकर्रर किए गए हैं। हालेलुया। 29:10 पढ़ लिया आपने? 29:10 और डैनियल 9:2 भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दानियल नबी की किताब में से एक वचन देता हूँ आपको। दानियल नबी की किताब 9 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। दानियल 9:2, एक से पढ़ता हूँ। दानियल 9 अध्याय। In the first year of Darius the king of Ahasuerus, by descent of a Mede, who was made king over the realm of Chaldean. हालेलुया। कैलेडियन के realm के ऊपर इसको राजा बनाया गया। ये यहोवा ही बनाता है। In the first year of his reign, I Daniel perceived in the book the number of the year that according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet must pass before the end of the desolation of Jerusalem, namely 70 years. अब एग्जैक्ट दानियल नबी की किताब 29:10 में जो भविष्यवाणी है, वो दानियल ने जिर्मिया 29:10 में जो भविष्यवाणी है वो जिर्मिया नबी ने की है कि 70 साल तक तुम्हें गुलाम रहना पड़ेगा। और जो मैंने कहा वो वैसा ही होगा। 70 साल के लिए वो गुलाम रहे, और प्रभु ने वादा किया था मैं विजिट करूंगा तुम्हें, मैं गुलामी से छुड़ाऊंगा। अब 70 साल पूरे हो रहे हैं। अब यहोवा का रूह किसे उभार रहा है? उस देश में, बेबीलोन में दानियल रह रहा है। 70 साल बाद जिर्मिया की किताब पढ़ रहा है, और उसे पता लग गया है कि समय आ गया है। और दानियल को जब पता लगता है कि समय आ गया यहोवा के छुड़ाने का, तो वो उपवास रख के बैठ जाता है प्रार्थना करने के लिए। और जब वो उपवास रख के प्रार्थना करने के लिए बैठता है, तब यहोवा परमेश्वर जिब्राइल दूत को, गैब्रियल को भेजता है। लेकिन गैब्रियल को कौन रोक लेता है? प्रिंस ऑफ पर्शिया। ऊपर सेकंड हेवन में एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है शैतानी, जो उस टेरिटरी पे राज कर रही है। ये वो सरकारें हैं जो बाबुल का बुर्ज जब बन रहा था तब यहोवा ने 70 वॉचर के हाथ में सौंपी है। ये है बेबीलोन।
मिस्ट्री बेबीलोन दुनिया के ऊपर राज्य करने वाली सत्ताएं हैं। दुनिया पे राज करने वाला सियासी सिस्टम, दुनिया पे राज करने वाला मजहबी धर्म का सिस्टम, दुनिया पे राज करने वाला इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम, दुनिया पे राज करने वाला मीडिया जर्नलिज्म, दुनिया पे राज करने वाला एजुकेशन सिस्टम, दुनिया पे राज करने वाला मेडिकल सिस्टम, दुनिया पे राज करने वाली एंटरप्राइजेज, दुनिया पे राज करने वाली हर तरह की गतिविधि, सोशल एक्टिविटी, ये वो सिस्टम है बेबीलोन से जो निकला है, जो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। हालेलुया। तो उसने गैब्रियल को रोका 21 दिन तक, और क्या लिखा है? यहोवा ने मिकाएल को भेजा। वॉर, यहोवा की सेनाओं का सेनापति है मिकाएल। हालेलुया। तो युद्ध हुआ और गैब्रियल वापस आया और कहता है, परमेश्वर के प्यारे जन, तेरी दुआ तो उस दिन ही सुन ली गई जब तूने स्वर्ग की ओर अपना मुंह फेरा। हालेलुया। तो भाई और बहनों, बेबीलोन का सिस्टम एक बहुत बड़ा संग्राम है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। यही तो चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस समय। इट इज अ vicious bloody battle that is being waged in the United States. It's Biden and Harris are just pawns. वो मोरे हैं सिर्फ, उनके पीछे आत्माएं काम कर रही हैं शैतानी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोल को हैक करना चाहती हैं, क्योंकि वहां से यीशु मसीह के कलाम की रोशनी फैली दुनिया में। वो यहूदी लोगों के लिए एक सेफ जगह थी जिसे कोलंबस ने ढूंढा। उसकी डेस्टिनी इजराइल के संग जुड़ी हुई है। और मैंने आपको बताया दुनिया की सब कौमों के ऊपर वॉचर राज करते हैं, फॉलन एंजल राज करते हैं अब, लेकिन इजराइल के ऊपर यहोवा राज करता है। हम ज़बूर गाते हैं, यहोवा राज करदा है, हुण लोग मनावन डर, ओ करूबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर, कंबे जमी थर थर, ओ करूबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। सहून विच है बुलंद खुदा, मालिक सब कौमां ते, ओ पाक ना वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे, ओ पाक ना वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे। यहोवा राज करदा है, हुण लोग मनावन डर, ओ करूबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। व्यवस्था सार, व्यवस्था सार। मिस्टर जॉनसन जूसफ, क्या कौन सा मिशन की बात आप कर रहे हो? वट मिशन डू यू वांट टू नो? बताइए मुझे, आप क्या जानना चाहते हैं? टेल मी, क्या जानना चाहते हैं भाई आप? अगर आप कलाम सुन रहे हैं तो आपको मिशन समझ नहीं आ रहा क्या मिशन है खुदावंद का? मेरा कोई मिशन नहीं है। हालेलुया। तो पढ़िएगा आप ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, व्यवस्था सार 4 का 19 और व्यवस्था सार 32 का 8। ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में अध्ययन करें। ये 2 आयतें बता रही हैं कि ज़मीन की कौमों को यहोवा ने वॉचर के हवाले किया है, लेकिन यहोवा ने इज़राइल को अपनी मिरास बना के, अपना पोर्शन बना के रखा है। आप चाहें तो यहोवा का पोर्शन बन सकते हैं, आप चाहें तो आपके ऊपर अन्य जातियों की बदरुएं राज करें, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। पतरस के लिए यीशु मसीह कहते हैं लूका 22 अध्याय के 31-32 वर्ष में, शमौन शमौन शैतान ने तुझे मांगा। हालेलुया। किस लिए मांगा? ग्रीक वर्ड है दियोमाए,
जिसका मतलब है जुडिशली हसतान पुट अ पिटीशन इन हेवन। डियाबलोस ग्रीक में कहते हैं उसे, कि शैतान ने एक पिटीशन डाली हेवन में तेरे लिए कि तुझे वो ले और तेरी धुलाई करे, जैसे गेहूं में से भूसा निकाला जाता है, क्योंकि भूसा है पतरस के जीवन में। तो भाई और बहनों, वो जब भूसा होता है ना जीवन में, आप प्रभु को निकालने नहीं देते तो फिर वो बीस्ट के हवाले करता है। सोड आती है, फैमिन आता है, पेस्टिलेंस आता है, अल्टीमेटली बीस्ट आता है। तो मैं आपके साथ अर्ली मॉर्निंग में शेयर करूंगा ये 70 वीक्स कैसे पूरे होते हैं। एग्जैक्ट जब 69 वीक पूरे हो जाते हैं ना, 69 वीक, तो खुदावंद यीशु मसीह आता है धरती पे। और ये 70 वीक को कैसे प्रभु ने, जैसे उसने 26 अध्याय लेवी व्यवस्था में कहा, 7 गुना और दूंगा, 7 गुना और सजा दूंगा, अगर नहीं मुड़े तो 7 गुना और दूंगा, 4 बार 7 गुना बोला। ये 4 बार 7 गुना मल्टीप्लाई हुई इजराइल की सजा। ये मैं सुबह आपको पूरी कैलकुलेशन इसकी दूंगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन पे अध्ययन करेंगे। मिस्ट्री बेबीलोन विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और प्रार्थना कीजिएगा। जो विषय मैंने आपको बताया कि हम लोग, वो एक बहुत प्यारे अजीज़ पास्टर जी हैं और उनकी बेटी की शादी है, एंड ही हैज़ वर्चुअली नो मनी। टुडे ही केम टू मी, क्योंकि उनको वो जहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी सेविंग की थी, दे काइंड ऑफ डिफ्रॉडेड हिम। तो हम लोग उनकी कुछ सहायता करेंगे। मैंने कुछ हेल्प किया है, बट ही नीड्स लिटिल बिट बिग चंक ऑफ हेल्प। तो आप में से जिन जिन को खुदावंद ग्रेस देगा, मैं आप लोगों को मैसेज भी करूंगा, तो वी विल ब्लेस दैट जेंटलमैन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल अर्ली मॉर्निंग आप जुड़िएगा, मैं 70 वीक की पूरी डिटेल आपको दूंगा, पूरी डेट्स, कैसे एग्जैक्टली यीशु मसीह उस दिन गधी के बच्चे पे बैठ के आता, वो कौन सी डेट है। हालेलुया। एग्जैक्ट पूरी कैलकुलेशन करेंगे खुदावंद के कलाम में से। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।